Hi students. So we have already started the chapter that is your reproduction in organisms, and we have finished until plasmotomy. I believe we have finished until the topic that was plasmotomy. So we'll move forward and we'll discuss further about the asexual reproduction, other different types of asexual reproduction in case of plants. Now, in this video, we're going to discuss about the asexual reproduction in case of plants previously, and we'll try to finish it. So, सबसे पहला basically क्या है कि in plants what we can see there are two different ways by which the reproduction, that is the asexual type of reproduction, can be seen. The first one is called apomixis and the second one is called vegetative propagation. So one by one we will discuss. The first one, that is your apomixis. See, apomixis, in this case what is happening in this type, the asexual reproduction in case of plant, which is actually done by a specific way or by a specific means, and that is called agamospermy. उसे हम क्या कहते हैं? agamospermy कहते हैं, ठीक है ना? That is your agamospermy. Now in case of agamospermy होता क्या है ना? See, actually the agamospermy means the formation of embryo from unfertilized ovule. So the ovule which is not fertilized, from that ovule actually the embryo is formed. That means embryo in this case, in case of plant, that is the seeds, right? The seeds are actually formed without fertilization of the ovule, and that is called A means absent, without, gamospermy. Okay, so agamospermy, what we can see in this case of plant, where there are also another category of apomixis, where the embryo, that is your seeds, are developing without the fertilization of the ovule. ठीक है, तो जैसे हम अभी आगे भी पढ़ेंगे, जैसे इसके बारे में और पढ़ेंगे कि कितने तरह का होता है agamospermy. जैसे बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं, there are basically three different types. We have categorized in three different subcategories. This first one is adventive polyembryony, then recurrent, then non-recurrent agamospermy. We'll study all that. अब देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम डिस्कस करेंगे. आपने इसके बारे में बहुत पढ़ा भी, थोड़ा बहुत आपको सब लोगों को आइडिया होगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द मॉर्फोलॉजी chapter, the chapter of morphology in plants in class 11th, right? So you have you have some idea, or you have some more idea as well, it depends. Okay, so we'll discuss. So let us move on, and in this lecture I will discuss, and I will also show you the images of each and every example what I am going to discuss with you. So the first subtype or the subcategory of agamospermy is your adventive polyembryony. ठीक है ना? So what is that? In this case, the embryo develops from the diploid cells of nucellus or integument. अब nucellus कहाँ होता है? आप सबको पता है कि ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो आपके लेयर्स होते हैं, ठीक है ना, और उसमें जो सेल्स वहां पे अंदर रहते हैं मतलब कॉम्पैक्ट स्टेट, उसे हम बोलते हैं न्यूसेलस. उसमें से कोई भी एक सेल मैच्योर होके ओव्यूल बनेगा, एग बनेगा एक्चुअली, है ना, और इट इज कवर्ड विद सम इंटेगुमेंट्स, लेयर्स. ठीक है, तो कभी कभी अगर एक लेयर है तो उसे बोलते हैं मोनोटेगमिक, अगर दो लेयर है तो उसे हम कहते हैं बाइटेगमिक, उसे हम कहते हैं इंटेगुमेंट. सो आई बिलीव यू हैव रिमेंबर्ड दोस थिंग्स, राइट? सो यहाँ पे होता क्या है, इन दिस केस एम्ब्रायो इज डेवलप्ड फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल्स ऑफ न्यूसेलस. ठीक है ना, तो एम्ब्रायो इस केस में कहां से डेवलप हो रहा है? इट इज डेवलपिंग फ्रॉम दीस nucellus cell, the cells which is present in the nucellus, and that is also diploid. Okay, और क्या है? adventive polyembryony जो है, okay, it is very common. किन में ये बहुत कॉमन है? It is very common in citrus plant. मतलब citrus जो plants होते हैं बेसिकली, उनमें ज्यादातर हमें क्या देखने मिलता है? हमें ये adventive polyembryony, मतलब जो आपके एम्ब्रायो जो होता है डेवलप होता है डिप्लॉयड सेल्स ऑफ न्यूसेलस से. सो न्यूसेलस के जो सेल्स है या फिर इंटेगुमेंट्स के जो सेल्स है, उससे जो उसके जो डिप्लॉयड सेल्स है, उससे आपका जो एम्ब्रायो है वो डेवलप होता है. और हमें ये कहाँ सबसे ज्यादा दिखता है, कौन से प्लांट में सबसे ज्यादा दिखता है? वो हमें दिखता है
सिट्रस जो प्लांट्स है हमें उसमें ये सबसे ज्यादा दिखता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज वेरी इंटरेस्टिंग. द क्वेश्चन कैन कम एज वेल लाइक द एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रायोनी in which plants it is very common, it is more common in which plants. ठीक है, so that answer will be citrus plants. ठीक है, I hope it is clear. So let's move on. Now these embryos are better than the normal embryo which forms after fertilization. और क्या है हमें जानना है इसमें कि अगर embryo बनता जो है that is actually formed because of the fertilization, because of the egg and the male and female gamete fertilization. But these are forming without fertilization, and what is the benefit of that? The benefit is that it is better than the normal embryo. Okay, means in quality and its viability, it is comparatively better. Okay, so जो आपका fertilization के बिना जो ovule develop हो रहा है, in this case, the seeds, basically the embryo means the seeds are of better quality and have better viability. So that is very interesting. Okay, so this is actually a type of asexual reproduction what we can see in plants, right? So we are going to discuss about the plants only, the asexual reproduction in case of plants only, one by one. Next type, that is your B, that is your recurrent agamospermy. ये क्या होता है भैया? Recurrent agamospermy में होता क्या है? सिंपल यहाँ पे भी जो एम्ब्रायो बनता है ना, जो बेसिकली जो एम्ब्रायो बनता है जो दैट इज जो एक्चुअली डिप्लॉयड, वो डिप्लॉयड होता है. डिप्लॉयड जो मेगास्पर्म मदर सेल होता है वो, लेकिन वो जिस एम्ब्रायो सैक में रहता है ना, जो एग जिस एम्ब्रायो सैक में रहता है, दैट इज अ हैप्लॉयड. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. Now in this case what happens, the embryo which is formed is diploid megaspore mother cell. It's a diploid megaspore mother cell because the megaspore mother cell goes under meiosis to produce the complete embryo sac, and that embryo sac which is actually haploid. Okay, and where inside the egg is present, that is the megaspore. Okay, I hope it is clear. Next, now the next subtype of the agamospermy, that is called I think I have discussed this, right? Okay. So this is the next one. Now the in last case what we are discussing, the recurrent agamospermy. So the mother cell give rise to embryo which is diploid. ये हमें याद रखना है. ठीक है, लेकिन वो जो embryo sac है जिसके अंदर वो रहता है, that is your haploid. Okay, so that is the main difference. Non-recurrent agamospermy, ये क्या होता है? In this case, the embryo develops from haploid unfertilized egg. अब यहाँ पे जो embryo है वो develop ही हो रहा है haploid egg से. ठीक है ना. तो पहले हम देख रहे थे diploid हो रहा था, अभी से इसमें क्या हो रहा है? ये development जो हो रहा है आपका embryo का, वही हो रहा है जो कि आपका haploid है. तो haploid egg से development हो रहा है, ऐसा केस है तो हम उसे कहते हैं आपका नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी. ठीक है ना. तो हम उसे क्या कहते हैं? नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी. अच्छा, रिकरेंट एगैमोस्पर्मी का डेफिनेशन थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए, अच्छा रहेगा. आई विल जस्ट टेल यू, you can write it in a different way. The point what I have given, you can just skip that, it may be a little bit confusing, so you can write what I'm saying. See, agamospermy is a formation of the seed, right, has an embryo formed without meiosis or syngamy. Okay, I'm repeating this. Agamospermy is the formation of seed, that is the embryo, that has an embryo formed without meiosis and syngamy. Okay, and it is of two types. पहला क्या होता है? non recurrent और recurrent. So जो आपका recurrent है, so the recurrent agamospermy मतलब क्या होता है? All the cells of the embryo sacs are diploid. क्या होता है? All the cells of the embryo sac की बात कर रहे हैं. So all the cells of the embryo sacs are diploid. I hope it is clear. Now, in case of non-recurrent agamospermy में क्या होता है?
In this case, the embryo develops from a haploid unfertilized egg, and this particular process is known as parthenogenesis. इसी को हम क्या कहते हैं? Parthenogenesis कहते हैं. This is your parthenogenesis. इसका मतलब क्या हुआ? जो एम्ब्रायो है वो डेवलप होगा कहां से? हैप्लॉइड अनफर्टिलाइज्ड एग से. अगर हैप्लॉइड अनफर्टिलाइज्ड एग से एम्ब्रायो डेवलप होता है, उसे हम नॉन रिकरेंट एग एम्ब्रियो मानते हैं, और उसका क्या नाम है? कॉमनली हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस. ठीक है, दैट इज योर पार्थेनोजेनेसिस. Next we'll discuss the second type or second category. So here we need to discuss, there are a lot of different things and types and patterns. Under this we'll discuss one by one. So vegetative propagation. सबसे पहले हमें ये समझना है कि vegetative propagation है क्या. Vegetative propagation का मतलब क्या होता है कि जो plants है उसके जो vegetative parts है, क्या हो सकते हैं? Stem is a vegetative part, the root is a vegetative part, the leaf is a vegetative part, right? So the plant asexually develop or reproduce from these vegetative parts. Then we can call that type of reproduction as a vegetative propagation. So what is the meaning of vegetative propagation? The vegetative propagation means formation of a new plant from the parts of the plant that is a vegetative part of the plant. Okay. So क्या क्या है vegetative part? Stem हो सकता है, root हो सकता है, leaf हो सकता है ना? अब हम बात करेंगे एक वेजिटेटिव पार्ट को लेंगे और हम देखेंगे कि हर एक वेजिटेटिव पार्ट से कैसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली और उनके कितने डिफरेंट तरह के एग्जांपल्स है. फर्स्ट इज योर स्टेम. ठीक है, हम स्टेम को देखेंगे. स्टेम से कैसे होता है वो देखेंगे. फर्स्ट जो आपके टाइप्स है उसे हम बोलते हैं रनर. क्या बोलते हैं उसे? रनर. अब इसमें होता क्या है? रनर के केस में क्या होता है कि जो आपका प्लांट है वो क्या होगा? They will actually the stem will arise horizontally. Stem क्या होगा ना? Horizontally बनेगा. तो उससे एग्जांपल क्या है ना? साइनोडॉन इज एग्जांपल. इसको बोलते हैं दूब घास. ठीक है ना? दूब ग्रास. ठीक है. अब आप यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा, लेकिन आई थिंक इट इज नॉट क्लियर, सो आई विल ट्राई टू ड्रॉ इट फॉर यू. सपोज इफ दिस इज one plant, that is your cynodon, that is a doob gas. So these are roots I'm trying to draw. Fine. अब क्या होगा कि यहां से इसका जो stem है, so the stem will form horizontally like this. ऐसा horizontally stem बनेगा ऐसा. ठीक है, ऐसे horizontally होगा. और ये क्या होता है ना? this stem are stout, मतलब हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं होता है. ठीक है ना? अब ये जो बनेगा आपका स्टेम, now this stem again it can generate a new plant from this. Okay, when the stem actually touch the soil, from there again one small stem structure will develop, and from there again one new plant will develop. ठीक है, so these are called runners. ठीक है, तो ऐसा होता है. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? साइनोडॉन. ठीक है, so it forms the stem which arise the horizontal to the plant. ठीक है ना? अब इसमें होता क्या है? the branches which has multiple nodes. आपने पढ़ा होगा जब आप प्लांट टिश्यू पढ़ रहे होगे या मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे होगे तो आपने पढ़ा होगा नोड्स, इंटरनोड्स, राइट? So the branches which has multiple nodes, which branch? The horizontal branch. अभी हम मैंने ड्रॉ करके आपको दिखाया. तो उसमें क्या होता है? नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, और उसी नोड्स और इंटरनोड्स जब कांटेक्ट करते हैं किसके साथ? सॉइल के साथ प्रॉपर्ली, तो फिर एक नया स्टेम बनता है. उसी नए स्टेम से फिर एक नया प्लांट बन जाता है. The same point I have written and you can see on the screen right now. So whenever the node comes in contact with the soil properly, again give rise to a new stem. जब ये जो हॉरिजॉन्टल स्टेम निकला है आपके मेन प्लांट से, और इसमें नोड्स और इंटरनोड्स होंगे, जब ये प्रॉपर आपका जो नोड्स है, ये नोड है, जब ये सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो क्या होगा? स्टेम बनेगा एक, और उसी स्टेम से फिर एक नया प्लांट बनेगा, और ये चीज जो है कंटिन्यू होता रहेगा. ठीक है ना? ये आपका we can say this is one way by using the stem the plants are
reproducing asexually, and this category is called runners. अगर जो भी plant इस तरह से इस by this way the plants which are reproducing they are known as runners. Example क्या है? Cynodon, commonly हम जैसे कहते हैं दूध grass, ठीक है, ये पूजा में यूज होता है, people are using it. This is very important for Hindus who are worshipping by using this grasses, right? Now I will show you the diagram of the Cynodon, so it will be more clear to you after you see this diagram. Okay, so this is the diagram. This is the diagram. So can you see this is the structure? So here the main plant. From here we can see a long stem, horizontal stem that is that has been generated, and it is when it is coming in contact with the soil, again one small stem generated. From there the new plant will grow and this will continue. ठीक है, ये दूब घास का पैटर्न है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का, ठीक है ना. सो आई होप इट इज क्लियर. फाइन. सो नेक्स्ट इज ऑफसेट टाइप. पहले हमने क्या पढ़ा अभी? रनर. अब दूसरा क्या कैटेगरी है? ऑफसेट. अब ऑफसेट क्या होता है? दीज आर रनर्स बट दीज आर एक्वेटिक रनर्स, पानी में होते हैं, ठीक है ना. अब इसमें क्या होगा? Now these plants, in the case of this aquatic runners or the offset, the plants, they have their body, as you have already studied in the chapter of plant tissue about parenchyma, parenchyma, collenchyma, है ना. तो ये जो आपके aquatic plants होते हैं, तो इसमें होता है क्या? parenchyma होता है, which are fluffy and spongy, swollen, right? तो पूरे बॉडी के अंदर, पूरे प्लांट बॉडी के अंदर हर जगह पे ये एरेनकाइमा होता है, which is helping them because एरेनकाइमा means they can capture the air, which is helping or maintain the buoyancy in the water. So that is why the एरेनकाइमा is present in the body of that particular plant. तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे इस डायग्राम में, so this is actually your this is the water level, ठीक है, this is water level, and the roots and the leaf part. So this is the stem, this is the stem part, right? This is a leaf part. Okay, and this is the root part. So leaf part is also present in cluster, root part is also present in cluster. Stem जो होता है, इसमें भी क्या होगा? आप देखो यहाँ पे इस जो stem है, it is also forming horizontal branch, just like the runner in case of the last case we have discussed in case of Cynodon. तो यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे एक horizontal branch बनाया है, horizontal जो आपका stem है वो डेवलप हुआ है. लेकिन यहाँ पे क्या है? जो पहले हमने क्या पढ़ा था, जो स्टेम था वो स्टाउट था, STOUT, स्टाउट मतलब टफ होता था वो, ठीक है, कंपैरेटिवली. ये जो स्टेम है, क्योंकि ये एरेनकाइमा से बना हुआ एक्वेटिक प्लांट है, तो ये सॉफ्ट होता है, ठीक है. अब इसमें भी नोड्स और इंटरनोड्स होंगे, है ना. फिर ये नोड्स और इंटरनोड जो होंगे, और एक्चुअली ये क्या है ना, ये दिस इज एक्सटेंशन ऑफ द नोड बेसिकली, ठीक है ना. दिस इज एक्सटेंशन ऑफ अ नोड. And then the node when coming, then the node will actually form again one stem, and from the stem a new plant will form, where again we can see the leaf are in cluster and the root are in cluster, right? And this will continue. So in this case, or in case of the offset runner, or what we can say the aquatic runner, offset or aquatic runner, यहाँ पे क्या होता है? This is an aquatic plant, so all the parts have एरेनकाइमा, बताया मैंने आपको अभी बताया, and are swollen. Root and leaves are arranged in cluster. That also I have discussed with you. The same point I have written. So on horizontal branch will arise. One horizontal branch will arise and it floats on the water. Just now I have discussed, है ना. तो एक horizontal branch बनेगा और वो क्या करेगा? पानी के ऊपर float करेगा. And from the node of the horizontal branch क्या होगा? One more stem will arise, and from that a new plant will grow, which are also having this the leaf in clusters, and also the roots are also in cluster. Okay. Now difference क्या है इन दोनों में? आपके जो offset है और ये runners हैं, इनके बीच में difference क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया. difference ये है कि in case of runners the connection, that is the horizontal branch, that is stout, that is a hard structure, ठीक है. और उसमें क्या होता है? मल्टीपल नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं. लेकिन ऑफसेट में क्या है? it is also horizontal branch, but it is one
इंटरनोड लॉन्ग, दैट्स ऑल। मतलब बस एक ही इंटरनोड जो है वो ग्रो करके हॉरिजॉन्टल ब्रांच के फॉर्म में बनता है। लेकिन पिछले केस में हमने क्या देखा, उसमें बहुत सारे नोड्स और इंटरनोड्स हो सकते हैं और वो हार्ड होता है। लेकिन इसमें क्या है, ये जो ब्रांच है हॉरिजॉन्टल, ये एक्चुअली इट्स एक्सटेंशन ऑफ वन इंटरनोड ओनली एंड इट इज सॉफ्ट स्ट्रक्चर, कंपैरेटिवली इट इज वेरी सॉफ्ट स्ट्रक्चर। अभी देखो ऐसा होता है, अब हम थोड़ा सा वापस जाएंगे, इट्स अ सॉफ्ट स्ट्रक्चर, राइट, and we'll see the diagram. I will tell you one more thing. Yeah, and because it is a soft structure, it degenerate very easily. मतलब क्या हुआ इसका, मतलब क्या हुआ, ठीक है, अभी देखेंगे। देखो अभी ये जो ये आपका जो ऑफसेट का ये जो प्लांट है, इसका जो बिकॉज दे आर सॉफ्ट इन स्ट्रक्चर एंड ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ग्रो कर रहा है, जो आपका ब्रांच ग्रो कर रहा है, स्टेम ग्रो कर रहा है, इट्स अ मॉडिफिकेशन और एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनोड। अब होता क्या, क्योंकि ये सॉफ्ट है तो ये धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो आपका रनर के केस में क्या था, वो हार्ड स्ट्रक्चर था, तो एक के साथ एक जो भी प्लांट बनते हैं सो सब एक के साथ एक लाइन में चेन में जुड़े हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड। बट यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पे अगर ये डीजेनरेट हो जाता है, ये जो आपका जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच है, स्टेम है, ये डीजेनरेट हो जाता है, सॉफ्ट है इसलिए क्या होता है, डीजेनरेट हो जाता है। इसलिए क्या होगा, उसके बाद थोड़ी देर के बाद, थोड़े समय के बाद ये सारे प्लांट्स अलग हो जाएंगे, दे विल फ्लोट सेपरेटली इन द वाटर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जो ऑफसेट है उसका एग्जाम्पल क्या है, इकोर्निया, इसका डायग्राम भी देखेंगे हम इकोर्निया का। इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, ठीक है ना, ऐसा ये है आपका इकोर्निया, जो आप देख रहे हो पानी के ऊपर है ना, ये फ्लावर के साथ, दिस इज अ इकोर्निया। ये एक्चुअली क्या था ना, ये इट्स अ एक्सोटिक प्लांट। तो हम अपने देश में इसको लाए थे बहुत साल पहले। हम ये सोच के लाए थे कि अगर हम अपने लेक्स में, वाटर बॉडीज में इसको हम उगाएंगे तो व्हाट विल हैपन, द ब्यूटी ऑफ द लेक और द वाटर बॉडी विल इंक्रीज। बट बाद में क्या पता चला कि दिस इज very dangerous because it's grow very fast. Means you cannot imagine, like it will grow very, like if you only keep or introduce only 2 or 3 of this type of Ecornia plant in a pond, within a 1 month it can cover the entire plant, entire pond. तो इससे नुकसान क्या है, इससे नुकसान ये है, आप टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं, क्योंकि बंगाल में सबसे ज्यादा, अगर आप बंगाल विजिट करोगे तो आप देख सकते हो वहां पे जितने भी वाटर बॉडीज है वहां पे कॉमनली आपको ये वाला जो प्लांट स्पीसीज है ये आपको मिलेंगे, है ना। और इससे नुकसान क्या है, इससे यूट्रॉपिकेशन हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए वाटर बॉडीज है तो उसका मतलब उसमें सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। स्पेशली हम जो प्लांट, पॉन्ड या लेक हमारे पास है तो हम बेसिकली किसके लिए करते हैं, दो रीजन है। एक तो है we actually construct the lakes, or we artificially make the ponds or small water tanks. Why? To actually ensure or to secure our water availability or water need. And what is the second reason? Second reason is to cultivate aquatic organism for economic importance or for economic बेनिफिट्स। जैसे हम फिश को कल्चर कर सकते हैं, दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कल्चर करते हैं, कुछ प्लांट्स भी कभी कभी कल्चर करते हैं ना। तो अगर ये यूट्रॉपिकेशन मतलब क्या है, ऊपर पूरा कवर हो जाएगा तो सनलाइट अंदर आ सकती है क्या, नहीं आ सकती है। तो वहां पे क्या होगा, प्रॉपरली एरेशन नहीं होगा, जो ऑक्सीजन डिफ्यूजन, जो आपका डिसॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, न्यूट्रिशन का अपवेलिंग ठीक से नहीं होगा। अगर सनलाइट ठीक से नहीं पहुंचेगा तो उसके अंदर उस वाटर बॉडी में जो एल्गी है, जो आपके दूसरे ऑर्गेनिज्म प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, वो ठीक से सर्वाइव नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, जो पूरा इकोसिस्टम है उस पूरे प्लांट का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो उस प्लांट में, उस पॉन्ड में रह रहे हैं, सो दे विल नॉट एबल टू सर्वाइव। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द टेरर ऑफ बंगाल, बिकॉज बंगाल में आपको ये हर जगह मिलेंगे। तो बंगाल में आपके जो ये पॉन्ड्स है, पीपल आर यूजिंग दोस पॉन्ड्स बेसिकली फॉर द इकोनॉमिक benefit. They cultivate the different types of fishes there, and because of this plant they are always struggling. Why? Because after a certain period of time they have to clean the pond, otherwise it will cover the entire pond and it will result it can be drastic for the production of that particular pond. Okay, so I hope it is clear. So next अभी हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो है ट्यूबर्स।
नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, ट्यूबर्स। ये भी स्टेम है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा, तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे। आई विल जस्ट ट्राई टू रिमाइंड यू अबाउट दिस। जैसे पोटैटो होता है जिसको हम बोलते हैं बटाटा, है ना। तो जो पोटैटो होते हैं तो उसमें आप देखोगे जो नोट्स होते हैं ना, दिस आर नोट्स वेयर इट लुक लाइक लिटिल बिट ऑफ आईज, ठीक है ना, आईज का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे नोट्स होते हैं। यही से आपके जो आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज फ्रॉम हियर द potatoes are actually reproduce asexually. Same thing we can see in case of ginger, ginger भी वैसा होता है, ठीक है ना। So I will show you on again some images, then it will be more clear to you. देख लीजिए, देखिए, so these are actually eyes of the potato from where this nodes are developing, and यहीं से एक नया प्लांट बन जाएगा। हम क्या करते हैं ना, खेती करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पार्ट को काट लेते हैं, इस पार्ट को काट लेते हैं, इसको भी काट लेंगे और इसको हम जमीन में इसको हम सो कर देंगे, ठीक है ना। सो आफ्टर दैट अगर न्यू प्लांट विल डेवलप। सेम केस ये जिंजर भी वैसा होगा, देखिए यहाँ पे नोड्स हैं सारे, ठीक है, और यहाँ पे देखो प्लांट ग्रो हो रहा है, नया प्लांट, सो एसेक्सुअली ग्रो हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है बल्ब्स। ये भी आपको पता है, दिस इज आल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, और इसमें एग्जांपल हम क्या लेंगे, जैसे अनियन है, गार्लिक है, ठीक है ना। उसमें होता क्या है, इन दिस केस द स्टेम इज एक्चुअली it is actually a small disc-like structure. It modified into a small disc-like compact structure, okay, which is also helping in the reproduction. ठीक है ना। Next क्या है, corn, C-O-R-N, corn. corn के example हम लेंगे Colocasia. So I will show you the both, don't worry. Colocasia, it's actually edible vegetables. Actually, it's grow under the ground. ठीक है, लोग बहुत यूज करते हैं इसको। It is very nutritive vegetable, and it's very famous in northern India. People are taking it very well. I don't know about Maharashtra, but in most of the places in India, it is very famous vegetable. I'll show you the image as well. Now the Colocasia, the stem, the stem is like it is a hard structure, stout, and under the ground, this nodes are present, and nodes are going under the ground, and where it grows actually. Okay. Now from the nodes we can find tiny branches are coming out, okay, and another cone or even the plant go above the ground level, okay. तो जो आपके जो नोड्स होते हैं ना, उसमें से वो तो आपके मिट्टी के अंदर मतलब सॉइल के अंदर रहता है, लेकिन वहां से जो ब्रांच होगा वो धीरे धीरे बाहर आके एक प्लांट बन के ग्रो करके बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका एग्जांपल है Colocasia का। तो आई विल शो यू द डायग्राम, sorry, I'll show you a real image. Yeah. So this is the onion bulb. देख सकते हो आप यहाँ पे जो आपका प्लांट है एसेक्सुअली ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, और ये आपके है Colocasia. These are very very famous. और ये देखो आप यहाँ से भी ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो नोड्स हैं, तो यहाँ से प्लांट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, और ये ग्राउंड अंडरग्राउंड होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये अंडरग्राउंड है, लेकिन ये जो प्लांट है ये आपके ग्राउंड के बाहर आ जाता है, ठीक है ना, सॉइल के बाहर आके वहां पे डेवलप होता है और वहीं पे धीरे धीरे मैच्योर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सकर्स। नेक्स्ट है आपका सकर्स। इसका एग्जांपल क्या है, क्रिसैंथेमम। अभी सकर्स को समझने के लिए सीधे डायग्राम में जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि इसके जो ब्रांचेस होते हैं ना, ये थोड़ा सा पेक्यूलियर है। इसके जो ब्रांचेस होते हैं ये इनके केस में, सकर्स के केस में, ये एक्चुअली सॉइल के नीचे होता है। आप देख सकते हो इस डायग्राम पे कि दिस प्लांट दे आर बेसिकली हैविंग देयर ब्रांचेस व्हिच इज अंडर द ग्राउंड, ठीक है, मिट्टी के नीचे होता है, इसी को एक्चुअली बोलते हैं सकर्स, ठीक है ना। सो दिस आर कॉल्ड सकर्स, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर। सो इन दिस केस द हॉरिजॉन्टल ब्रांच आर प्रेजेंट अंडर ग्राउंड, एग्जांपल क्रिसैंथेमम, सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट स्टोलॉन। स्टोलॉन क्या होता है, इन दिस केस द हॉरिजॉन्टल ब्रांच मेड अ लूप अबव द ग्राउंड। इसमें क्या था, अंडर द ग्राउंड था, और इसमें अभी स्टोलॉन में क्या हो गया, अभी अबव द ग्राउंड है। एग्जांपल स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, अभी ये मिट्टी के ऊपर लूप बनाता है। सो आई विल शो यू अ स्मॉल डायग्राम सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। देख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे इसके केस में क्या था, आपका जो क्रिसैंथेमम के केस में क्या था, सकर्स के केस में ये नीचे से जा रहा है, मिट्टी के नीचे से, और जो नेक्स्ट कैटेगरी हम देख रहे हैं स्टोलॉन, उसमें आप देखिए कि ये ऊपर से जो है ब्रांच
जो कनेक्शन है दोनों प्लांट के बीच में ऊपर से जा रहा है, लूप का फॉर्मेशन बना है, देयर इज अ लूप फॉर्मेशन ऑफ द स्टेम। ठीक है, तो अभी तक हम स्टेम डिस्कस कर रहे हैं, तो द स्टेम इज फॉर्मिंग अ लूप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड दिस इज एग्जांपल, दिस इज द रियल स्ट्रॉबेरी स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो ग्राउंड के ऊपर से है, यहाँ पे देखो लूप बनाया है ना, यहाँ से देखो लूप बनाया है। फाइन, so the next, now we'll discuss the root. Okay, see, I'm not discussing the everything in much detail because you have already studied all these things in morphology, and also you have studied in the plant tissue also. Okay, so we'll not discuss in detail all that. Now root, अब root से कैसे essentially development होता है plants का, example लेते हैं Dalbargia siso, जिसको हम बोलते हैं शीशम wood. The शीशम wood is very very important, and these are very very like economically they are very important. Why? Because the furniture what we can actually make, those furnitures, the best furniture actually we can make from the शीशम wood. So there is a high demand of this शीशम wood. ठीक है ना, तो इसमें भी हम देखते हैं कि जो प्लांट ग्रो करता है वो रूट से ग्रो करता है सीधा। इसमें होता है ना रेडियल जो आपके रूट्स दिखते हैं हमें के केस में, एंड दोस रेडियल रूट्स आर एक्चुअली ग्रो फ्रॉम द रेडियल रूट्स, sorry, radical buds. The roots have radical buds, and that radical buds actually grow, and they will form the complete plant, right? So the roots have radical buds, and from the radical buds, another very like root like structure is developed first. root के जैसा स्ट्रक्चर बनता है, और उससे क्या होगा, फाइनली प्लांट बनता है। ठीक है, इस एग्जांपल क्या है, और दूसरा और एग्जांपल लेते हैं जो आपको पता होगा, स्वीट पोटैटो, जिसको हम बोलते हैं आइपोमा बटाटा। स्वीट पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है, आइपोमा बटाटा। ठीक है, so आइपोमा बटाटा इज अ साइंटिफिक नेम। So the same thing I have written here as well on the, you can see on the screen. So the roots have radical buds. From this, another very root-like structure develops. So you can write here one point, develops. Okay, and this root-like structure, from the root-like structure, the complete plant arises. Okay, or develop. Now the next, the third part, or third vegetative part of the plant from where the plant can grow asexually, that is your leaf. ये सबको पता है कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कॉमन है। Bryophyllum is the example, then Bigonia, then Kalanchoe. So these are the different example of the plants where the new plants are actually growing from, or it's developed from asexually from the leaf as well. Leaf से ही बन जाते हैं नए plants। ठीक है ना, Bryophyllum तो आपने छोटे क्लास में देखा होगा। So वही चीज है। ठीक है, so in this case the plant leaves are fleshy and have buds. तो होता क्या है कि प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनमें क्या होता है, आपने कभी ब्रायोफाइलम देखा होगा तो आप देखना वो थोड़ा थिक होता है, फ्लेशी होता है, और लीफ में ही आपको उसके बर्ड्स मिलेंगे। ठीक है ना, नाउ द नोड व्हिच गिव राइज टू द न्यू प्लांट, द नोड व्हिच इज गिव राइज टू द न्यू प्लांट, जैसे हम कैन सी द डायग्राम हियर। सो दिस इज द डायग्राम। अब जहां से जिस नोड से, यहाँ बहुत सारे नोड्स होंगे, बर्ड्स होंगे, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, तो जहां से ये ग्रो करता है, नया प्लांट ग्रो करता है, उसका नाम क्या है, उसका हमने क्या नाम दिया है, फोलियर बर्ड। हमें क्या कहते हैं उस बर्ड को जहां से न्यू प्लांट डेवलप होता है, इन केस ऑफ ब्रायोफाइलम दैट इज योर फोलियर बर्ड। ठीक है, सो द टिश्यूज व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द लीव फ्रॉम वेयर द न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड आर नोन एज फोलियर बर्ड्स। ठीक है, द सेम थिंग आई हैव डिस्कस्ड, राइट? So I will show you some pictures. Oh, okay. The first is this is your Iconium batata. जैसे मैंने बताया था कि इसमें radical birds होते हैं, right? They are having radical birds, and from that radical birds उसे root बनेगा, और root से सीधा आपका नया plant बन जाएगा। तो ये sweet potato है, और उसी ऐसे ही plant बनता है। ठीक है, and this is the lot of, you can see here in this picture there are a lot of sweet potatoes just after harvesting. नेक्स्ट, दिस इज द बायोफाइलम। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ना लीफ बर्ड्स और फोलियर बर्ड्स बोलते हैं। देखो ये थोड़ा फ्लेशी होगा, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे
जहाँ पे बर्ड्स था, जहाँ पे यहाँ पे टिश्यूज है, फ्रेश टिश्यूज है, वहां से क्या हुआ, नया 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 एक प्लांट डेवलप हो गया। अब होता क्या है ना कि जब ये नया प्लांट डेवलप होता है, उसके बाद जब ये लीफ झड़ जाता है प्लांट से, तो धीरे धीरे ये लीफ डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये प्लांट जो है वो सॉइल में एक्चुअली परमानेंटली सेटल हो जाते हैं। सो दैट इज अ प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट we'll discuss some artificial, though we're discussing the asexual reproduction, but we also need to discuss that how we can also actually produce, or actually we can also interfere in this process of asexual reproduction, or how can we utilize the knowledge of the asexual reproduction or the capacity of the plant to reproduce vegetatively, how we can use that property of the plant, and we can also grow some different types of plant with using some different types of techniques. So पहला टेक्निक हम क्या डिस्कस करेंगे, तो हम पढ़ने क्या वाले हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हम आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली आर्टिफिशियली तो नहीं है, मतलब हम बस चीजों को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या है प्रोसेस, हम टेक्निक हम यूज करते हैं, उसे बोलते हैं कटिंग। अब देखिए, हम जब भी किसी प्लांट के किसी पार्ट को, वेजिटेटिव पार्ट को हम जब कट करेंगे, तो हमें हमेशा ये ध्यान देना है कि इट शुड बी एंगुलर कट। क्यों? क्योंकि अब एंगल में हम काटेंगे तो हम नोड्स को, मैक्सिमम नोड का जो एरिया, क्योंकि हम सबको पता है कि नोड्स के जो पार्ट्स हैं, इंटरनोड्स और नोड्स पार्ट्स है, वहीं से आपका जो नया प्लांट है वो ग्रो हो सकता है। अगर वो पार्ट, वो टिश्यू है, वहां पे जितने भी टिश्यूज है वो डिस्ट्रॉय हो गए, वो प्रॉपरली नहीं रहे, तो फिर नया प्लांट ग्रो नहीं हो सकता। इसीलिए हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, we actually when we cut it for the piece, so it should be, we should follow a Gauss principle that we should cut in a slant. It should be, the cut should be slant or in angular, okay, for minimum damage of the tissue. So let us read the point what we can see on the screen right now, and we'll discuss again. So we could cut the plant in such a manner that the new plant can grow from this node, right? And for that we need to cut it an angle. That means we need to cut in a slant, right? And why we cut it? This help in the minimum damage to the tissue and maximum exposure to the soil. अब आगे एक डायग्राम में आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो ये एक स्टेम है, इसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये कट है, राइट। सो वी हैव टू कट इन ए स्लैंट एंगुलर पैटर्न। इससे क्या हुआ, जो टिश्यू है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द टिश्यू इज आल्सो नॉट डिस्टर्ब्ड। और क्या हुआ, जब हम इसको सॉइल में, जब हम इसको रखेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम जो पार्ट है इस टिश्यू का वो सॉइल में एक्सपोज हो जाएगा, है ना। अब इसको हम जब आर्टिफिशियली कर रहे हैं तो वी हैव टू डू समथिंग एल्स एज वेल। तो हम क्या करते हैं ना, हम इसको ऐसे काटने के बाद, इस तरह के स्ट्रक्चर में काटने के बाद हम इसको ऑक्सिन में डिप कर देते हैं, जो क्या है, फाइटोहॉर्मोन है। काम क्या है करता है ये, इट प्रोमोट द रूट फॉर्मेशन। ये क्या करेगा, रूट फॉर्मेशन के लिए प्रोमोट करेगा, ठीक है ना, स्टिमुलेट करेगा उस पार्ट टिश्यू को। तो रूट बनेगा उसके बाद, ठीक है ना। कहां से बन सकता है, यहाँ इस पार्ट से बन सकता है, और ये जो आपके इंटरनोड जो पार्ट है वहां से बन सकता है। अगर ये रूट, जब ये रूट बन जाएगा तब हम इसे इम्प्लांट कर सकते हैं सॉइल में, ठीक है ना, और हम सॉइल में लगा सकते हैं इसको, तो फिर नया एक प्लांट बन जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक व्हाट वी यूज फॉर वेजिटेटिव, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्टेम को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेयरिंग। देखो लेयरिंग दो तरह का होता है, होता है ग्राउंड लेयरिंग, दूसरा होता है एयर लेयरिंग। अभी ग्राउंड लेयरिंग में क्या होगा, ग्राउंड लेयरिंग में ये होता है कि जो आपके प्लांट है, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है जैस्मिन, उसमें क्या होगा, जो प्लांट की ब्रांच है, ठीक है, ये जो स्टेम है, वो क्या होगा, बेंड होके इट विल टच द सॉइल। द मोमेंट इट टच द सॉइल प्रॉपर्ली, देन इट कैन, फ्रॉम देयर इटसेल्फ इट कैन ग्रो कंप्लीट, a complete plant can grow from there itself, right? इसे हम कहते हैं ground layering, right? So in this case, in case of jasmine, when the stem bends and comes in contact with the soil, it can give rise to a new plant, and this is called ground layering. बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट पेज में भी हम लोग डायग्राम भी देखेंगे उसका थोड़ा। इसके पहले थोड़ा बात करते हैं एयर लेयरिंग के बारे में। अब देखो एयर लेयरिंग क्या होता है ना, मान लेते हैं कि ये एक, यहाँ पे आपको क्लियर दिख नहीं रहा, सो आई ड्रॉ इट अगेन। सपोज इफ दिस इज
द प्लांट और ये इसका ब्रांच है। तो हमने क्या किया, हम करते क्या है, इसका जो डेड पार्ट है, मतलब आप अगर किसी प्लांट को देखोगे तो आप ध्यान देना कि उसके जो ऊपर वाला जो पार्ट है इट्स एक्चुअली डेड, इट्स कवर्ड विद बार्क एंड ऑल लेयर्स ऑफ बार्क, राइट। तो हम उसको ना काट के निकाल देंगे, अलग कर देंगे पूरा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हम आपका जो सॉइल है उससे हम इसको रैप कर देंगे, पूरा जो एरिया है इसको हम सॉइल से रैप कर देंगे, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, सॉइल या फिर जो फ्यूनेरिया है, जो कि आपका एक तरह का फंगस है, उसको हम उसके साथ मिक्स कर देंगे। इससे फायदा क्या होता है कि जो एयर में जितना मॉइस्चर है, क्योंकि किसी भी टिश्यू को ग्रो करने के लिए, किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, सेल को ग्रो करने के लिए प्रॉपर मॉइस्चर जरूरी है। तो उस प्रॉपर मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए हमने सॉइल से रैप कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ से रूट डेवलपमेंट होगा, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। अब देख सकते हो यहाँ पे रूट डेवलप हुआ है। अब जब ये रूट डेवलप हो जाएगा, देन वी मेक ए कट, तो फिर हम इसको कट कर लेंगे, इस ब्रांच को कट करके फिर हम इसको इम्प्लांट कर देंगे सॉइल में, ठीक है। और उससे फिर एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। सो इसी को बोलते हैं हम एयर लेयरिंग। आई होप इट इज क्लियर एंड आई थिंक यू कैन सी द पॉइंट व्हाट ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। सो लेट अस रीड दैट एज वेल। The outer dead tissues are removed in case of the plant and it exposes the inner living tissues and then cover it with soil and mosses or funaria. Mosses के साथ भी हम करते हैं या तो funaria के साथ भी करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? Because it can absorb the moisture and the moisture from the atmosphere. As a result, it keep the tissue moist and the roots are actually develop or arises, right? Then we can cut it and develop it in a independent plant, है ना। और इसी को this method is also known as गुटी। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? गुटी कहते हैं, ठीक है। So this method is also known as गुटी, ठीक है। This is very important. और लेफ्ट साइड में the diagram what you can see, this is the example of ग्राउंड लेयरिंग। ये जैस्मिन है, ऐसे ही होता है कि उसके ब्रांच ऐसे बेंड होके, जो स्टेम बेंड होके सॉइल में टच हो जाएंगे, फिर वहां से फिर से नया प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं ग्राउंड लेयरिंग। ये जैस्मिन का एग्जांपल है। जैस्मिन प्लांट जो है उसके केस में ऐसा हमें दिखता है। नाउ द नेक्स्ट इज द ग्राफ्टिंग। ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है, मेथड। इसमें क्या होता है, it is used to combine the characters of the two different plants. मान लीजिए हमें किसी एक प्लांट का कुछ कैरेक्टर अच्छा लग गया और किसी एक प्लांट का कुछ कैरेक्टर अच्छा लगा, किसी का रेजिस्टेंस अच्छा है और किसी का प्रोडक्टिविटी अच्छा है, या फिर किसी का मान लीजिए दो फ्लावर है, तो किसी का फ्लावर का प्रोडक्शन अच्छा है किसी प्लांट में, और किसी प्लांट में फ्लावर का कलर अच्छा आ रहा है या फिर क्वालिटी अच्छा आ रहा है। तो हम दोनों के कैरेक्टर को कंबाइन करेंगे। तो करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्लांट का रूट पार्ट लेते हैं और दूसरे प्लांट का स्टेम पार्ट लेते हैं, और उसे भी हम कैसे काटेंगे, हम स्लैंट जो एंगुलर पैटर्न है उसी तरह से हमें काटना पड़ेगा और हम इसे जोड़ देंगे। जो रूट पार्ट लेते हैं उसे कहते हैं स्टॉक, STOCK स्टॉक, और जो स्टेम पार्ट लेते हैं उसे कहते हैं स्क्योन, SCION स्क्योन, ओके। अब दोनों को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद बिल्कुल सेम चीज करेंगे जो हमने गोटी के केस में किया था। विल कवर इट विद द सॉइल, ऑल्सो विल एड सम योर मॉस और फ्यूनेरिया टू मेंटेन द मॉइस्चर, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय के बाद ये दोनों जुड़ जाएंगे एक साथ और फिर एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा जिसमें कि दोनों प्लांट के क्वालिटीज रहेंगे, ठीक है ना। सो दैट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। आई होप इट इज क्लियर, फाइन। नेक्स्ट, दिस इज द डायग्राम, यू कैन सी हियर, दिस इज द डायग्राम टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो आप देख सकते हो ये आपका स्टेम पार्ट है, ये आपका रूट पार्ट है। इसको स्टॉक बोलते हैं, इसको क्योन बोलते हैं। अब दोनों को हमने जोड़ दिया। देखो एंगुलर पैटर्न में काटा है ना दोनों को, एंगुलर पैटर्न, ताकि आपका ये नोड वाला पार्ट है ये डिस्टर्ब ना हो, डैमेज ना हो। और हम दोनों को हम उसके बाद क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। इट्स कवर्ड विद योर व्हाट इज दैट, योर सॉइल एंड फ्यूनेरिया टू मेंटेन द मॉइस्चर, ठीक है। तो ये नॉर्मल। अब तो ये तो एक केस है। अब अभी देखो बहुत सारे और भी डिफरेंट कंडीशंस हो सकते हैं। क्या कंडीशन हो सकते हैं? मान लेते हैं कि आपका जो स्टॉक है, रूट है, उसका डायमीटर कंपैरेटिवली बड़ा भी हो सकता है स्टेम से, हो सकता है ना।
तो अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, तो हम उसको जैसे आप देख सकते हो इस डायग्राम में, इन दिस डायग्राम वेयर आई एम हाइलाइटिंग, सो वी विल डू इट, व्हाट विल डू, विल अटैच the scion part with the stalk part in the middle like this, ठीक है। और इस तरह के जो ग्राफ्टिंग है इसे हम कहते हैं वेज ग्राफ्टिंग। और क्या हो सकता है, डायमीटर और ज्यादा हो सकता है ना, डायमीटर और भी ज्यादा हो सकता है। अगर ऐसा ज्यादा हो गया डायमीटर तो हम क्या करेंगे, तो बहुत सारे आपके जो स्टेम के पार्ट है उसे हम इसमें अटैच कर देंगे, उसे हम बोलते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं हम उसे, क्राउन ग्राफ्टिंग, ठीक है। और ये जो नॉर्मल हमने अभी पढ़ा ग्राफ्टिंग को, जिस जो नॉर्मल कंडीशन में डायमीटर मतलब दोनों का सेम है, नॉर्मल कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे हम कहते हैं टंग ग्राफ्टिंग। तो तीन तरह के ग्राफ्टिंग होता है, टंग ग्राफ्टिंग जो कि नॉर्मल कंडीशन में जो नॉर्मल है उसको बोलते हैं टंग ग्राफ्टिंग। दूसरा है आपका डायमीटर थोड़ा बड़ा हो गया तो उसे हम कहते हैं वेज ग्राफ्टिंग, और बड़ा हो गया तो उसे कहते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग व्हाट वी नीड टू डिस्कस बिफोर आई स्टॉप हियर, that is, I will not going to discuss this thing in much detail because you already have some idea because you have studied in class 11 the tissue culture and micropropagation that also we use for the development of the plants asexually from different parts, or like the plant parts, the vegetative part, ठीक है। तो vegetative part को use करके हम micropropagation से भी या tissue culture करके भी हम नया plant बना सकते हैं। Okay, so I hope it is clear. So we'll meet in the next lecture where we'll start sexual reproduction. Till then, take care, be safe, stay at home. Good night. Bye.